Once again, welcome back. In the previous class, while we were doing this chapter, financial management, I'd come to this concept of trading on equity. And I told you that this is a complete separate concept. See, when we talk about the capital structure, तो हमारे पास जो अलग अलग words होते हैं and अलग अलग तरीके के questions होते हैं, I'm taking all of them here itself and then we would move to the next sector. The reason is ये जो एक capital structure का मतलब हो जाता है when a company is deciding whether it has to expand, whether it should go for some loan, तो उसके पीछे एक दो चीजें होती हैं. Either we would be taking up the shares, we would be raising the capital through equity shares or through shares, and secondly we may go for a debt. तो तब उस position पर we have different words what we call as find out the trading on equity, या फिर whether this alternative is right or wrong. मतलब you will be coming across such words. And here itself you need to understand कि इसका मतलब क्या है and what kind of questions can I get in the paper. And this is one of the very common and a 6 marker question. This will not come below that. ये 6 से कम में आ नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर आपकी न्यूमेरिक मतलब की जो आपका कैलकुलेशन है वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है. But it is only a simple calculation, not a rocket science. It's nothing about maths and all. A simple calculation plus and minus. बस आपको वो जो हम कहते हैं ना फॉर्मूला याद होना चाहिए कि कब किस चीज को हमने डिडक्ट करना. बस दैट इज इटसेल्फ इट्स you have only the deductions, but when you have to, that you should know. And I'm pretty sure being economic students where you are calculating the मतलब कि आप national income वगैरह को भी calculate करते हो तो this might not be that much difficult for all of you. So that day I told you about these 3 situations where the capital has been told कि एक जगह पर उनको जो है they had to raise the capital, so they have taken the loan. एंड इन मतलब कि दो सिचुएशन ऐसे जहां लोन लिया है और एक ऐसा जहां लोन नहीं लिया. एंड उस सिचुएशन में इफ आई सी 0.93, 1.04, 1.05 एंड 1.40, तो इसका मतलब हो जाता है here I had ended. This is called as what we call EPS. यानी कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पास जितने भी शेयर्स हैं उस पर शेयर में उनको इतना फायदा और मिल सकता है अगर शेयर मतलब कि जो कंपनी है इट इज गोइंग फॉर फर्दर डेब्ट फॉर द एक्सपेंशन प्रोग्राम. And agar they are not taking the debt, then they are not getting that much benefit. तो the company would be going for इन तीनों मतलब ये सिर्फ ये स्टेटिक नहीं है कि यही दे जाएंगे. This is one factor. I repeat, this is one factor. इसके अलावा और भी factors को हम लेते हैं. तो you might be getting the word like trading on equity. आपके पास जैसे वर्ड्स आते हैं या फिर इज इट राइट मतलब जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए whether the company should go or not. So we are going to do the same kind of question today. I have already shared the question with you. This is the question. आपके पास जो words हैं you may be getting financial leverage, trading on equity. मतलब ये question है. Question को समझेगा because one more question is there that I'll do when we are doing the assignment part. That doesn't have this kind of calculation. Now the first one says Vedant Limited has a share capital of 10 lakh. उनके पास already है and उनकी जो शेयर की वैल्यू है एक शेयर की वैल्यू वो है 100 रुपीज. Right now this is one point. Be alert. पूरा कान खोल लेना बच्चे. दिस इज वन पॉइंट. उनके पास जो शेयर कैपिटल है शेयर कैपिटल इज ऑलवेज इन दी टर्म्स ऑफ रुपीज एंड शेयर की वैल्यू यानी कि टोटल शेयर्स कितने हैं टोटल शेयर्स कितने वो यहां नहीं दिया है. दिस इज द कैपिटल. ये वो पैसा है यानी कि 10 लाख डिवाइडेड बाय 100. 10 लाख के तो कैपिटल है
और 100 रुपए का एक है, तो आप मतलब कि डिवाइड करके यू विल फाइंड आउट द नंबर ऑफ शेयर्स। तो दिस इज द फॉर्मूला। नंबर ऑफ शेयर्स को आपने कैसे करना है, टोटल जो भी आपका कैपिटल है, जो भी जिस भी क्वेश्चन में, उसको आपने जो भी उसकी वैल्यू दी है, यहां पर 100 रुपीज दिया हुआ है, इफ इट इज नॉट गिवन वी टेक 10 रुपीज, राइट। इफ इट इज नॉट गिवन, ऐसा होता है, अगर नहीं दिया तो हम 10 रुपए की वैल्यू लेकर चलते हैं, इफ इट इज नॉट गिवन। ठीक है, सर्टन थिंग्स आर सर्टन टाइम्स नॉट गिवन एंड वी हैव स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स फॉर देम, हमारे पास है। नहीं दिया तो 10 रुपए, लेकिन यहाँ दिया हुआ है तो वी नीड टू, यानी कि उनके पास जो शेयर्स हैं वो है 10,000। उनके पास जो शेयर्स है वो है 10,000। 10,000 शेयर्स है, 100 रुपए का एक शेयर है, और टोटल कैपिटल 10 लाख रुपए लगा रखा है, राइट। इट इज द फर्स्ट पोर्शन। द सेकेंड पोर्शन सेज द कंपनी नीड्स 5 लाख मोर फॉर एक्सपेंशन। अब उन्हें 10 लाख में और 5 लाख चाहिए, तो दे हैव टू ऑप्शंस, राइट। द फर्स्ट ऑप्शन सेज they can go for 5,000 equity shares at the rate of 500 rupees each, so 100 rupees each, यानी कि 5 लाख रुपए, ठीक है। And second says they can go for a loan as debentures at the, और जिसमें इंटरेस्ट रेट होगा वो होगा 10%, ठीक है। Now assuming that the company retains its EBITDA, मतलब हम यहाँ EBITDA नहीं EBIT यूज कर रहे हैं, we are not using the another word A। उनका 4 लाख रुपए का इनकम है, दिस इज वी आर टेकिंग, एंड द टैक्स दैट द कंपनी इज गिविंग इज 50%। अगर यही हम रिटेन कर रहे हैं, यानी कि अगले साल के लिए भी जब हम 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मतलब कि एक्सपैंड कर रहे हैं, तब भी हमारा एबिटा 4 लाख रुपए रहेगा, और टैक्स हमें तब भी 50% देना है। तो इन दोनों में से, यानी कि ये और इनमें से कौन सा बेटर रहेगा, वेदर वी शुड गो फॉर द लोन कैपिटल और फॉर द इक्विटी कैपिटल। So this is the question, and these are the kinds of questions। मतलब एक ये एक तरीका, दूसरा ऐसा ही तरीका होगा। इनमें इन्होंने 2 ऑल्टरनेट्स दिए हैं, आपसे हो सकता है आपके क्वेश्चन में 3 ऑल्टरनेट्स भी दे सकते हैं। 1 and 2 दिया ना, यहाँ पे तीसरा दे सकते हैं, इश्यू ऑफ 8% डिबेंचर, ऐसा भी दे सकते हैं। So there can be, but this is you need to do। तो जब भी आपके सामने क्वेश्चन है, मतलब आपके पास ऑल दीज न्यूमेरिक ये वर्ड्स न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, जो आर बीइंग गिवन द शेयर कैपिटल और नंबर ऑफ शेयर्स दे रखा है, आपको एबिटा दे रखा है, आपको मतलब कि तो आपको ये वाला क्वेश्चन ऐसे करना जैसे अब हम करेंगे। Two things we need to understand. The very first is we need a proper, neat and labeled हमारा जो है न्यूमेरिकल एग्जाम्पल होगा। जैसे ये तो हम कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पास अब यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, ठीक है, बट 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 देयर इज नो न्यूमेरिकल गिवन। अब आपको नहीं पता है कि इसमें न्यूमेरिकल देना है, मैंने यहाँ पर डाला है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये दिस इज अ बोर्ड क्वेश्चन। Explain the term trading on equity along with a neat numerical example. This is only for your understanding class 12. We normally don't give this numerical example, only it is written explain along with an example। न्यूमेरिकल वर्ड नहीं दिया होता है, तो जब आपके शब्द ट्रेडिंग ऑन इक्विटी आ गया है तो भी आपको समझना है, आपको ऐसे वाला क्वेश्चन करना, यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन, राइट। अब इसमें क्या होगा, इसमें तो सब कुछ दिया है, राइट, इसमें तो सब कुछ दिया है, उसमें तो कुछ दिया नहीं है। आपके पास 2 ऑप्शंस है, एक मैं भी करवाऊंगी, दूसरा एनसीईआरटी। आपको यही रखना है कि कोई एन एक्स अमाउंट इज शेयर कैपिटल जिसकी वैल्यू ₹10 है,
कंपनी को और इतना और इतनी मतलब कि इतने पैसे की जरूरत है, या तो कंपनी शेयर्स लेगी या फिर कंपनी लोन लेगी. This is what in Hindi the question is all about. So let us now come to the first question. These two are the same. So I'm going to do only this one. ये एक क्वेश्चन का तरीका है, whether it comes in your pre boards or it comes in your boards. मतलब ये भी एक वर्ड है, ये भी एक तरीका है. In the first, the numerical, the everything, the values are given. In the second, the values are not given. In the second only the word trading on equity is there. और ये जो अभी हम लोगों ने मैंने आपको बुक दिखाया था, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मतलब अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होता है या नहीं होता है. राइट. तो लेट अस नाउ कम एंड you all have to take up a proper notebook. पेन से आप लोग जो हो you can use उसके जो बॉक्सेस हैं वो बनाओगे. प्रॉपर आपको वर्ड टू वर्ड लिखना है. इट शुड नॉट बी मक्खी मारिंग, और एल्स आपको जो है मार्क्स नहीं मिलेंगे. आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. एंड दिस क्वेश्चन कम्स either without option या फिर with the similar option. Either without option or similar option. तो इसीलिए इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस तो करना ही है. यू कैन नॉट से मैं ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ या जा रही हूँ. तो इसलिए यू हैव टू डू इट. तो लेट अस स्टार्ट. we would first of all take up, like हम मैथ्स में लेते हैं वैसे ही we would be taking up all the given things. जैसा जो भी चीजें दी हुई है वो हम लोग उतार लेंगे in the answer sheet, जिसके अंदर आपके शेयर की वैल्यू, टोटल शेयर्स, क्योंकि these are the things which we will require, हम अपने कैलकुलेशन में हमें चाहिए. then EBITDA, EBIT, then tax and interest, ये तो हमारा जरूरी है. राइट. इवन इफ यू आर नॉट, ये वाला आप उतारते नहीं हो तो भी आप इसको डिवाइड करके टोटल शेयर्स को लिख दोगे. एंड कभी कभी आपको टोटल शेयर्स देते हैं, कैपिटल की वैल्यू नहीं देते हैं. yes, everyone has to note it also. That would be better. That would help you out to write it in the proper manner. नाउ कहां से हमें अपने आंसर को शुरू करना. दिस वाज द पोर्शन विच इज गिवन इन द क्वेश्चन. ये हमारा गिवन है. ठीक है. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द आंसर. मतलब कहां से हमारा ओरिजिनल कैलकुलेशन स्टार्ट हो रहा है. तो सबसे पहले हम लेकर आएंगे, हमारे पास क्या है, दो सिचुएशंस है. एक सिचुएशन जिसमें कंपनी ने पूरा इक्विटी शेयर उठाया है, दूसरे में लोन है. तो हम लोगों को यहाँ पे करना है, यू कैन यूज दिस वर्ड व्हाट वी कॉल एज सोर्सेज, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हो.
और पहला है हमारा सिचुएशन 1, मतलब पहली सिचुएशन जिसमें कंपनी ने पूरा शेयर्स जो है मार्केट से लिया है, और दूसरी सिचुएशन है जिसमें उन्होंने लोन लिया है। ठीक है, द फर्स्ट इज where the company has gone for equity and second is it has gone for loan। ये वाला वर्ड नहीं लिखना है, इक्विटी और लोन, ये मैं सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, टू मेक यू अंडरस्टैंड, आई एम गिविंग यू। नाउ लेट अस कम, हमारे पास सबसे पहले हमें कहां से शुरू करना पड़ता है? द प्रॉफिट और द अर्निंग दैट वी हैव गॉट, दैट इज एबिट। और हमारा जो एबिट है वो है 4 लाख रुपीज, दोनों सिचुएशन में। तो अब आप एक मतलब कि वर्ड देखिए, एबिट का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म फॉर एबिट? अर्निंग, ठीक है, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। दिस इज द फुल फॉर्म फॉर एबिट। एबिट का ये फुल फॉर्म है। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट। तो पहले हमें जो माइनस करना वो होगा इंटरेस्ट। वाई? वाई? द रीजन इज कि जो भी हम लोग लोन लेते हैं उस पर हम कभी टैक्स नहीं देते, उस पर हम टैक्स नहीं देते। We don't give taxes on the amount which we are taking as loan, and debenture is a loan capital, right? So सबसे पहले हमने लिखा EBIT, अब आएगा हमारा interest। The second one what we have is interest। Now interest हम लोगों को बताया गया है 10%। It's already given in the question, we don't need to do anything। और इसको जो है we have to deduct। In the first case there is no interest। हमारा जो क्वेश्चन है, according to the question, in the first we are going to raise only the equity share, so there is no, but in the second हम लोग 5 लाख रुपए ले रहे हैं at the rate of 10%। so what will be the interest? 5 lakh per 10%, it is 50,000, right? Now अब हमारा इंटरेस्ट देने के बाद इनकम ये है। पहले वाले में तो 4 लाख ही है, लेकिन दूसरे वाले में 3.5 लाख हो गया है, बिकॉज वी हैव पेड द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%। नाउ वी हैव टू पे द टैक्स। और टैक्स हमारा जो है एज पर क्वेश्चन इट इज फॉर 50%, एंड इफ इट इज नॉट गिवन वी टेक 30% एज स्टैंडर्ड। प्लीज डू रिमेंबर दिस। अगर आपके क्वेश्चन ने नहीं दिया है, लाइक ऊपर वाला जो सेकंड क्वेश्चन था, एक्सप्लेन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी विद एन, मतलब कि विद एन एग्जांपल, तो इसमें आप 30% जो है यू कैन टेक। 30% इज द स्टैंडर्ड स्लैब वी टेक। 30% इज द स्टैंडर्ड स्लैब वी टेक, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशंस व्हाइल वी आर चेकिंग इट्स 30%, तो 30% आप ले रहे हो। तो अब पहले वाले में हम लोगों को कितना टैक्स देना है? वी नीड टू पे 2 लाख रुपीज, इस पर हमने देना है, जो हमारी इनकम है उस पर देना है। तो अब हमारा जो इनकम है यहां पर आ गया 2 लाख, एंड 3,50,000 पर हमें देना है 50% टैक्स। इस वाले में हमें इस वाले पे देना है, तो हमारा हो गया 1,75,000। दिस इज कॉल्ड एज EAT। 1 मार्कर क्वेश्चन है, दिस इज अ 1 मार्कर क्वेश्चन, दिस इज EAT।
and this is means earning after tax, right? In another word, this is the complete income हमारी. What we have to do is we have to divide the shares. जो हमारे पास टोटल शेयर्स हैं उनको हमने इस EAT से डिवाइड करना है. तो अब पहले सिचुएशन में हमारे पास शेयर्स कितने हैं देखिए. हमारे पास पहले सिचुएशन में ऑलरेडी 10,000 शेयर्स थे जो हमारा ओरिजिनल लोन कैपिटल मतलब ओरिजिनल कैपिटल है. प्लस अब हमने 5,000 और ये 5,000 कैसे हो गया. दिस विल बी 5,000 और ले लिया. ठीक है, तो हमारे पास टोटल शेयर्स कितने हो गए 15,000 पहले वाले में. रीजन पहले वाले में जो ओरिजिनल कैपिटल है उसे तो लेते ही लेते हैं एंड हमने अगर कोई ऐड किया है उसको भी लेते हैं. तो अब हमारे पास पहले वाले में 15,000 शेयर्स है. इन द फर्स्ट सिचुएशन द नंबर ऑफ शेयर्स इज 15,000 एंड इन द सेकेंड इट इज ओनली 10,000 क्योंकि उसमें तो हमने शेयर्स नहीं लिए ना, उसमें तो हमने लोन लिया है. ठीक है, तो टोटल जो है अब है हमारा नंबर ऑफ शेयर्स, नॉट कैपिटल बच्चे, शेयर्स. अब हम लोगों को जो है निकालना है EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर. एंड इसका जो फॉर्मूला होता वो होता है EAT अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स. EAT अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स. तो हमारा EAT क्या है 2 लाख है, उसको हमने डिवाइड कर दिया बाय 15. इसमें हमारा है 175 और हमने उसको डिवाइड कर दिया बाय 10,000. तो वॉट एवर द आंसर इज दैट वुड बी आर मतलब कि EPS. So let us just calculate quickly. I'm using the calculator, but you will not be allowed to use the calculator. This is प्लीज अपने दिमाग में मत रख लेना कि हम लोगों को जो है कैलकुलेटर अलाउ होगा. As per the question, in the first यानी कि जब हमने लोन कैपिटल नहीं लिया है, हमने और शेयर्स लिए हैं, तो जो हमारी इनकम है EPS है पर शेयर 13 रुपए 33 पैसे है, 13 रुपीज 33 पैसे. And whereas if we have taken some loan, that is the loan amount, then मतलब कि जो हमारा EPS है that is earning per share is ₹17.5. So which situation you seem to have better? कौन सा situation हमें better लग रहा है 13.3 और 17.7? 13.3 और 17.7. ये 13 rupees is greater income or 17 rupees is greater 17. Income? Yes. So this 17.5 is better क्योंकि इसमें 13 रुपए मिल रहे हैं, उसमें 17 रुपए मिल रहे हैं. दैट मीन्स द कंपनी शुड. अब हमारा क्वेश्चन क्या था, अब आपको अपना पूरा करना है. तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, अज्यूमिंग दैट द कंपनी रिटेन्स इट्स EBIT, advise which of the following alternatives will maximize the return for the equity shareholder. तो हमें क्या बताना है, that
The alternative 2 is better for the company's shareholders. तो इसको कैसे लिखेंगे? As EPS increases with loan capital, therefore second alternative is suitable for the company. ये मैं इसलिए लिख रही हूं बच्चे, क्योंकि कभी कभी आपकी यहाँ तो उन्होंने आपको बोला है suitable for the company with which they should go, मतलब अलग अलग ऐसे वर्ड्स आते हैं. शुड दे गो, तो आपको यस नो जो क्वेश्चन जैसा दिया होता है आपको वैसा ही आंसर लिखना होता है, एंड यू नीड टू पुट इट इन द राइट मैनर. अब ये मैंने डाल दिया है, इसके बाद यू नीड टू मेक अ प्रॉपर बॉक्स. अब आपको इसका एक बॉक्स बनाना है, तो आप यहाँ पर एक दिस क्वेश्चन शुड लुक लाइक दिस. ये क्वेश्चन ऐसा ही होगा. No need to use the red pen and colorful pen. This I have only showed how the calculation is done and what how we find out. We use a simple blue pen only. But लेकिन इसको ऐसे ही लिखना है. हाँ, you don't need to write this EAT को पूरा नहीं लिखना. आप EAT लिख लो बस बहुत है. फॉर्मूला लिखना अच्छा रहता है हमेशा. डिडक्शन का मार्क डालना सही रहता है. सिचुएशन 1, सिचुएशन 2 आपको ऐसे लिखना है. So this is one question which we Madhaki tells which alternative is better, whether if the company is going with the loan capital structure में loan ज्यादा हो तो अच्छा है या loan कम हो तो अच्छा है. So this is the very first example. The second question says Yummies Limited is a company dealing in edible oil. हमें इन सब चीज से कुछ नहीं लेना है. What you have to रेडियस द कंपनी इज. अब देखिए उस वाले में क्या था, हमारे पास कैपिटल का टोटल अमाउंट दिया हुआ था. रिमेंबर, उसमें हमें कैपिटल 10 लाख रुपीस पूरा दिया हुआ था. इसमें हमें कैपिटल अमाउंट नहीं, शेयर की वैल्यू एंड मतलब कि कितने शेयर्स हैं वो दिया, यानी कि उधर डिवाइड किया था या मल्टीप्लाई करना है. यानी कि यहाँ पर हमारे पास 50 लाख का शेयर है. देन the company is now planning to raise 20 lakh through 10% debenture, जिसमें हमारे पास रिटर्न ऑन इंटरेस्ट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 10%, टैक्स रेट इज 30%. अब इसमें क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता रही हूँ. व्हाट इज द डिफरेंस आई एम टेलिंग यू. इफ यू लुक इनटू द ओल्ड क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन था, in that first of all we were given the return on investment as EBITDA. मतलब उसमें दिया हुआ था हमारे पास that we are having 4 lakh rupees as the EBIT, right? इसमें पैसों में नहीं दिया है, but they have given it in the form of 10%. यानी कि जो हमारा टोटल लोन सॉरी टोटल कैपिटल है 50 लाख, उस पर हमको 10% हमारा जो है इनकम है, ये हमें कैलकुलेट करना होगा. सो दिस इज सेकेंड काइंड ऑफ क्वेश्चन क्लास 12. प्लीज डू अंडरस्टैंड दिस इज सेकेंड क्लास ऑफ, यानी कि जो हमारा टोटल कैपिटल है वो है 50 लाख जो दिया है, राइट. एंड 50 लाख पर हमारा 10% हमारा जो है इनकम है. तो 50 लाख का 10% इनकम विल बी
This is EBIT. So in some questions, you may be required to calculate the return on investment in some questions. एंड दोनों क्वेश्चंस पेपर के ही हैं, मतलब पेपर में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं दोनों तरीके से. समटाइम्स यू मे बी गिवन द एबिट, समटाइम्स यू मे कैलकुलेट. तो अब इस वाले में हमें कैलकुलेट करना है. ठीक है. तो द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 10%, यानी कि हमारा जो एबिट है वो है हमारा 5 लाख रुपए. तो यही हमारे पास है. एंड टैक्स रेट इज गिवन 30%. तो ये हमारा ये वाला जो पोर्शन है ऊपर वाला, ये आप लोग अपने आप लिखोगे. नाउ लेट अस कम कि पहला सिचुएशन क्या है. डू यू थिंक द कंपनी हैज टेकन द करेक्ट डिसीजन बाय रेसिंग एडिशनल कैपिटल थ्रू डेट. नाउ व्हाट इज ए कि वो जो है एडिशनल कैपिटल ले रहे हैं. इसमें ऑल्टरनेटिव नहीं दिया है, एडिशनल कैपिटल ले रहे हैं. पहले वाले में क्या था, हमारे पास दो ऑल्टरनेटिव थे, और शेयर्स इश्यू करें या फिर लोन ले, और शेयर्स इश्यू करें या लोन ले. ठीक है. और इस वाले में क्या है, हमारे को शेयर्स नहीं इश्यू करने, हमने सिर्फ ये देखना कि अगर हम लोन लेते हैं तो कितना फर्क पड़ता है. तो बाकी सब चीजें वैसी ही रहती हैं. नाउ लेट अस कम टू द पोर्शन व्हाट वी से सिचुएशन 1, जहां कोई हमने लोन नहीं लिया है, एंड सिचुएशन 2 जिसमें हमने लोन लिया है. मैंने ए एंड बी लिख दिया है, यू कैन यूज एनीथिंग.
Now, before you note it down, just see. In the question, it is given that EBIT is 5 lakh rupees. दोनों situation में, right? And tax rate is 30% that we have there. In the second one, they are raising a capital of 20 lakh rupees in which they have to give an interest of 10%. तो हमने ले लिया है कि जो हमारा एबिटा है वो तो 5 लाख रहा दोनों सिचुएशन में. फर्स्ट सिचुएशन में वी हैवंट टेकन एनी लोन, सो देयर इज नो इंटरेस्ट. बट इन द सेकेंड 20 लाख रुपए 10% लोन इज 2 लाख रुपीज. यानी कि जो हमारा अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट है दैट इज आपका 5 लाख ही है यहाँ पर, बिकॉज वी हैव नॉट पेड एनी इंटरेस्ट. और यहाँ पर इट वुड बी 3 लाख. नाउ वी हैव टू पे द टैक्स. इन द फर्स्ट 30%, 5 lakh का 30% is 1,50,000. In the second 3 lakh पर 30,000 is 90,000. तो जो हमारा EAT आया है that is 3,50,000 in this case and 2,10,000 rupees in the second case. Total shares. अब शेयर्स में हमारी कोई वैल्यू में, क्योंकि सेकेंड वाले में हमने सिर्फ लोन दिया है, हमने और शेयर्स नहीं लिए. जो हमने पहला क्वेश्चन किया था उसमें था दैट वी आर टेकिंग द शेयर्स, भी हमने इंप्रूव किया. हमारे पास दो, मेरे को तो EPS EAT अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स 0.7 एंड यहाँ पर 0.42. So in this the company has not taken the right decision by taking loan, क्योंकि जो अर्निंग पर शेयर है that has decreased. So this is the second question. This is how we have the questions. Now these questions will be different, and over the course of our time we would definitely discuss, or you can say practice more. But जहां हमने ये चैप्टर मतलब अभी हमने पॉज किया है, that is capital structure, वहां पर ये आ जाता है. तो these are the three kinds of questions. एक में आपको दो ऑल्टरनेट दिया है, एक में एक ही ऑल्टरनेट दिया है, दूसरे में सिर्फ आपको क्वेश्चन बोला है कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है. और जहां पर ऐसे आपको समझ आता है, जहां टैक्स रेट ये सब दिया हो ना, वहां पर यू नीड टू कैलकुलेट इट एंड यू हैव टू फाइंड व्हाट इज मतलब कि वेदर इफ द कंपनी इज गोइंग विद द डेट, तो कैपिटल स्ट्रक्चर उनके लिए फेवरेबल है या नहीं. दैट इज द एंटायर क्रक्स ऑफ दिस एंटायर कंटेंट जो अभी तक हमने लास्ट और आज की क्लास में किया है. दैट इज व्हाट इट सेज कि इफ वी आर टेकिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर विच सेज डेट अपॉन इक्विटी या फिर डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी, वो यही है. तो इसको हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं एंड देन वी फाइंड कि वेदर हम डेट को ऐड करेंगे तो हमें फायदा है, या डेट को ऐड नहीं करते तो हमें फायदा है, या डेट की जगह हम इक्विटी शेयर ऐड करते हैं तो हमें फायदा है. तो these are the three different situations and these are only, once again this is only one factor. इसके अलावा भी अभी हम लोग और फैक्टर्स भी पढ़ेंगे जो कि एक कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करता है. बट दिस पर्टिकुलर कंटेंट, दिस पर्टिकुलर इज वन वेयर यू नीड द कैलकुलेशंस. कुछ भी याद नहीं रखना. पहला आपको याद रहना चाहिए कि जो आपका क्वेश्चन उसमें एबिट कितना दिया है, व्हाट इज द अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि आप इन अनदर वर्ड आप मतलब कि बोल सकते हो ग्रॉस, जिसमें हमने कोई डिडक्शन नहीं की है. हमेशा हम पहले इंटरेस्ट को डिडक्ट करते हैं. द रीजन इज कि अगर हमने लोन लिया है तो लोन कैपिटल पर कभी भी आपका टैक्स नहीं लगता है. लोन इज आपका, दैट इज समथिंग विच
हम लोग उसके लायबिलिटी है इसीलिए। तो इफ द लोन इज टेकन देन वॉट एवर द लोन अमाउंट डिवाइडेड बाय द परसेंटेज वो हमारा डिडक्ट हो जाता है। देन आपको जो है टैक्स देना है, एंड देन टैक्स के बाद हमारा जो इनकम आ रहा है उसको हम बोल रहे हैं ईएटी, यानी कि अर्निंग आफ्टर टैक्स। एंड दैट इज वेयर हम उसको मतलब कि डिवाइड कर देते हैं विद द टोटल शेयर्स। अगर हमने शेयर्स और भी इश्यू किए हैं जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, तो उसमें हमने टोटल शेयर्स दिए हैं, लेकिन दूसरे वाले में हमारे एक ही जगह शेयर था, दूसरे में हमने सिर्फ लोन लिया है। तो जो भी हमारा टोटल शेयर कैपिटल है उससे उससे हम फेस वैल्यू ऑफ शेयर को लेते हैं। अगर शेयर वैल्यू नहीं दिए तो हम 10 रुपए लेकर चलते हैं, इफ इट इज नॉट गिवन। एंड देन जो हमारे पास ईपीएस आता, वी फाइंड वेदर इट इज फेवरेबल फॉर द शेयर होल्डर्स और नॉट। सो दैट इज द एंटायर क्वेश्चन, राइट। सो विद दिस द कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर हमारा ईपीएस वाला जो है दैट वी हैव कंप्लीटेड, एंड नाउ वी वुड बी प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट द कैपिटल स्ट्रक्चर in our next session. So bye for today.